Our resource person this evening is Dr. Nidhi Srivastav. Dr. Nidhi Srivastav is essentially a developmental psychologist. She provides counseling and guidance to people from all age groups. To elaborate a little more on our resource person, she is the founder principal of the Vivekanand International School, and she's also the founder of Pradarshika, which is a psychological counseling and guidance center. She's a lady who wears a hat of many colors, also a founder member of Jeevan, the secretary of the Patna Women's College Alumni Association, a consultant, member of Sahyog, in participating in a lot of literary activities, a columnist with several newspapers, contributing articles about women and children, and associated with the Ramakrishna Mission and the Swami Vivekananda Society. Ladies and gentlemen, we could not have a more professionally sound and a professionally competent counselor here this evening. We welcome Dr. Nidhi Srivastav. Today's times have seen, parents face tremendous problems. Now, why do I use the word problems? More, you seem to be understanding that the child is being in your company for for a long duration of time. And when we talk to a cross section of parents, it comes to my understanding that, naturally children are restless by nature, and you'd rather have them have, better times so that the children are able to go out and play or go to school or to move out with friends. Some children are difficult, some are easy. They say flowers bloom at different times. Similarly, every child blooms at his own pace. And who better to help all of us understand how best to deal with small children than our resource person, Dr. Nidhi Srivastav. So I welcome you, Dr. Nidhi, and it's all yours now. Thank you. Thank you. Good evening and namaskar to everyone here. Today is an auspicious day of Guru Purnima. So I want to honor the divinity among all of us, which is present among all of us. First of all, I would like to thank Mrs. Ashu Tiwari to invite me. This is an honor for me, and I am really happy to be with all of you. So it's my pleasure to be here among all the parents, teachers, and the renowned principal. So first of all, what is an effective parenting? When we say what is an effective parenting, we can say like this: the ability to interact and engage with children in such a way that they learn and grow into strong adults. Strong means not only physically strong, but mentally and psychologically. So mentally strong means that they are quite good in their studies, they have well settled in life, but psychologically also. We always take care of the food, the studies, everything of our children, but we don't take care of their psychological development, their spiritual development. And this is the thing why children today. And especially during this situation, children and we all are facing much problems. But why in normal days also, why the cases of mental problems are increasing?
today we will talk, so why these problems are there and how can, very simple ways are there, how can we deal that? So I always say I must talk to the mothers, because children are with mothers, and usually when the schools were running normally, then they used to stay with teachers and in the school for at least 5 hours, 6 hours. But now all the time they are with their mothers. So I always focus on the mothers, what mothers can do for the children, because they are the best guide, teachers, friends of the children. So let me start with personality. So what is personality? How it grows? When we talk about personality, it is actually it is a combination of different traits. Traits means, if we see a human being, usually we think about personality, how he looks. बहुत अच्छा personality है, लंबा है, देखने में सुंदर है. So the term personality, when we use, then we always, most of the time, we talk about the physical appearance. But the personality, that is only just a 10% of the total personality, how the person looks like. So that is only the 10% of the personality. The whole personality means how he is, how much he is capable of handling the problems, handling the different situations. And there are certain traits which makes a personality. So what is trait? If we see a child, या किसी भी पर्सनालिटी को अगर आप लोग देखें, तो हम देखते हैं कि उनमें हर किसी में इमोशंस है. इमोशंस आर देयर. All the people, they laugh, they talk. Sometimes they are sad, sometimes they are very happy. तो ये सारे लोगों में ये होता है. कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसमें ये ट्रेट्स नहीं होते हैं. But how everyone is different from another, ये कैसे होता है? तो ये जो personality है, that is a combination of different traits. किसी में कोई trait ज्यादा है, किसी में कम है, and it is guided by the heredity. Parents से traits आते हैं बच्चों में, उनका खुद का भी trait होता है, और ये जो different combination बनते हैं, हर किसी में कॉम्बिनेशंस डिफरेंट होते हैं, ये उसकी पर्सनालिटी का यूनिकनेस होता है. दैट इज द यूनिकनेस ऑफ वंस पर्सनालिटी. वो कैसे दूसरे से अलग है, ये जो अलगाव है किसी एक खास व्यक्ति में, दैट इज द यूनिकनेस ऑफ हिज पर्सनालिटी. तो सबसे पहले हम लोगों को, स्पेशली मदर्स को, ये समझ लेना होगा कि द चाइल्ड who is with me now, आपका जो बच्चा है वो आपके पास जो आया है, but he is a different personality. He has come through you, but he is not identical with you. आपके लिए जो अच्छा हो सकता है, जो खुशी की चीज हो सकती है, उसके लिए डिफरेंट हो सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to respect the uniqueness of a personality of your child. आपके बच्चे के पर्सनालिटी का जो यूनिकनेस है, जो अलगाव है दूसरे से है, उसके खुद भाई बहन से भी वो बच्चा अलग है, तो उसको रेस्पेक्ट करना, उसको समझना, that is the most important thing when a child is growing up with us. तो इसको हम लोग कैसे समझें? तो सबसे पहले बच्चों को के जो नीड्स है उनको समझने की जरूरत है कि व्हाट आर देयर नीड्स. मोस्टली थिंक कि we are giving them good food, we are giving them all the books and toys, and so we are providing everything to them, but we never care about their emotional things. What emotionally do they want? तो इसमें कुछ नीड्स हैं जो सभी बच्चों में होते हैं, लेकिन दैट डिफरेंट डिमांडिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, बट all the children
need these some emotional things and some physical things. तो सबसे पहले if you imagine one triangle, अगर हम एक त्रिभुज सोचते हैं तो उसमें नीचे का जो बेस है that is physical need. हर बच्चे की अपनी फिजिकल नीड होती है, दैट इज फूड. जो फर्स्ट शुरू में इनिशियल स्टेज में फूड है, उसको है, होता है, उसके इमोशनल नीड्स बढ़ते हैं. दे वांट मोर कॉम्पैक्ट सेफ्टी. सबसे पहले बच्चे को जो जरूरत होती है दैट इज सेफ्टी ऑफ अ चाइल्ड. सेफ पेरेंट्स के साथ अपने, तो ये सेफ्टी बहुत जरूरी है. इंटरैक्शन, हाउ मच यू आर इंटरैक्टिंग विथ अ चाइल्ड इवन इफ ही इज अ फ्यू मंथ्स ओल्ड, उसमें भी आपका इंटरैक्शन होना चाहिए. लविंग टचेस, you will be surprised to know कि touch is the most important thing in a child's life. कि कितना उसे प्यार का टच मिलता है, कितने प्यार से लोग उसे छूते हैं, उसके सिर को सहलाते हैं, उसके हाथ पे हाथ रखते हैं. तो ये जो टच है, that every child needs that stable relationship. ये जो है अभी के टाइम में this is very important that the parent should have a very stable relationship among them, even with other family members. आप लोगों को ये जान करके आश्चर्य होगा कि जब भी हमारे पास काउंसलिंग के लिए बच्चे आते हैं तो मोस्टली द प्रॉब्लम एरिया इज एट देयर होम्स. उनके घर में ही कहीं ना कहीं इंटरैक्शन का प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, आपसी रिलेशनशिप का, जो घर में पेरेंट्स के बीच में हो सकता है या और रिलेटिव्स है, जॉइंट फैमिली है तो उनके बीच में हो सकता है. तो दैट अफेक्ट्स अ लॉट ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी. तो ये आप लोगों को बहुत ख्याल रखने की जरूरत है कि बच्चे आपकी बात को फॉलो नहीं करते हैं, एक्चुअली आपके एक्शंस को वो आपको कॉपी करते हैं. they don't copy what they don't follow what you say. इंस्ट्रक्शंस आप हजारों देते जाइए, लेकिन वो करेंगे वही जो वो अपने घर में पेरेंट्स को या बड़ों को करते देख रहे हैं. इट मीन्स कि फर्स्ट यू हैव टू बी अ गुड पेरेंट. उसके लिए आपको पहले वैसा बनना पड़ेगा. आप लगातार बोल रहे हैं अगर कि तुम सच बोलो, यू बी ऑनेस्ट, you should speak truth, but you are doing something else, then he will follow that. He will not listen to you. तो ये सारा है कम्युनिकेशन. बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. even when the child is not able to speak, जब वो बोलना सीख ही रहा है, उस समय भी आपका इंटरैक्शन, how you call him, how you pamper him, कैसे आप उससे बात कर रहे हैं, कैसे आप उससे उसकी ओर मुस्कुरा कर देख रहे हैं, आपके हर एक्शन को बच्चा समझता है. मोस्टली वी थिंक कि ये बच्चा है क्या समझेगा इसको इसके सामने, लेकिन ऐसी बात नहीं है. द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एवरी इमोशन. इवन जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो भी आपके हर इमोशंस को समझते हैं. ये बहुत सारे रिसर्च आप लोग भी पढ़ते होंगे कि इवन व्हेन द चाइल्ड इज इन योर वूम, देन आल्सो दे अंडरस्टैंड योर इमोशंस. तो इसलिए हमेशा दो चीज ध्यान रखिए कि आपका बच्चा यूनिक है. नेवर कंपेयर योर चाइल्ड विथ एनीवन एल्स, चाहे वो उसका खुद का ही भाई बहन, कभी भी कंपेयर मत कीजिए. जबकि हम लोग उसका उल्टा करते हैं. देखो तो वो कैसे पढ़ ले रहा है, तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो, उसको कैसे मैथ्स में 100 आ गया, तुमको इतना ही आया. तो ये सारे कंपैरिजन जो है ये बच्चे के लिए बहुत हार्मफुल है. यू शुड ऑलवेज अवॉइड दिस कंपैरिजन. कभी भी बच्चे के साथ दूसरे को कंपेयर मत कीजिए. और बच्चे की सेल्फ एस्टीम, उसकी खुद की भी इज्जत है, इसका ध्यान रखिए. कभी भी बच्चे को दूसरे के सामने बेइज्जत मत कीजिए. कभी भी
किसी फ्रेंड के सामने या अपने रिलेटिव्स के सामने, नेवर से योर चाइल्ड इज इन वीक इन सम ऑफ द एरिया और ही इज वीक इन स्टडीज। कहीं भी कभी भी उसकी वीकनेस को आप लोगों के सामने मत बोलिए ओपनली। एंड वन मोर थिंग आई एम्फेसाइज एवरी टाइम कि द हार्ड वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स जो है वो बहुत हार्ड होते हैं, वो बच्चों के लिए यूज नहीं करने चाहिए। जैसे फेलियर, फेल, ये तो फेल होगा, ये तो ये सब, ये सारी चीजें बहुत कॉमन है, पेरेंट्स बोलते हैं ये तो फेल हो जाएगा, पढ़ता नहीं है फेल हो जाएगा। ये फेल वर्ड आप जितनी बार उसके सामने यूज करेंगे, उसके मन में, उसके सबकॉन्शियस में ये अंडरलाइन हो जाएगा। जहां तक सबकॉन्शियस की बात है, वो सबकॉन्शियस भी हम ब्रीफली आपको बता दें कि हम लोग जो भी बातें करते हैं बच्चों के सामने, चाहे उसको प्रेज करते हैं या हम लोग उसका क्रिटिसाइज करते हैं या जो भी है, दैट गोज टू देयर सबकॉन्शियस। हो सकता है वो अनजाने में ही ऐसा कर रहा हो और आपको लग रहा है वो जानबूझ के कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल जाने के समय पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, इस तरह की बातें करते हैं एंड वी ऑलवेज थिंक कि ये झूठ बोल रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि these symptoms appear in them, that is called psychosomatic symptoms. Sometimes they start vomiting, sometimes they have headache. तो ये सारी चीजें हैं, इसे हम लोग साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहते हैं। मीन्स कि इट इज एक्चुअली हैपनिंग विथ हिम, उस बच्चे के साथ सच में ऐसा हो रहा है। So stress goes to his subconscious and it's out like this, sometimes vomiting, sometimes हो सकता है फिजिकल कोई रीजन ना हो, but psychologically the child is affected by your words. So never use hard words for the children like failure, झूठ बोलता है, झूठ बोल रहा है, this lies, he always say, you say politely कि तू गलत बात मत बोलो, ये सीधे झूठ है या फिर फेल है, ये फेल है, ये इसको आप लोग एम्फेसाइज मत कीजिए, उसको अंडरलाइन मत कीजिए बच्चों के लिए, बच्चों के सामने। इफ ही इज डूइंग सम मिस्टेक आप डांटिए, लेकिन वर्ड्स पे ध्यान रखिए कि आप क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं बच्चों के लिए। उसके अलावा कुछ चीजें जो मैं पेरेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि बच्चों के साथ वैसा नहीं करना चाहिए, जैसे कि एक हम लोग बच्चों को समझ लेते हैं कि दे आर जस्ट लाइक कंप्यूटर्स, जितने सारे सॉफ्टवेयर उसमें डाल सकते हैं डाल देते हैं। दे हैव टू बी बेस्ट इन स्टडीज, they have to be best in games, they have to learn computer, they have to learn drawing, sometimes they are going for the dance classes or they are learning, nowadays they are learning online, sometimes karate classes, so many things, and you just want that the child should be perfect in everything, ये भी जान ले, वो भी सीख ले, वो भी कर ले, ये don't do this। ये बच्चों को हम लोग प्रोग्रामिंग नहीं करें तो अच्छा, बिकॉज अगर हम एक छोटा प्लांट लगाते हैं, हम लोग उसमें क्या करते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं, थोड़ा उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी उस प्लांट को खींच के बड़ा तो नहीं कर सकते हैं, उसको अपने अनुसार एकदम शेप तो नहीं दे सकते हैं। तो चिल्ड्रन आर जस्ट लाइक स्मॉल प्लांट्स, हमें उन्हें सिर्फ उसके आसपास वीड्स है तो उसको साफ करना है, उसमें थोड़ा पानी देना है, लेकिन उसका ग्रोथ जो है उसको खुद नॉर्मल ग्रोथ में उसको बढ़ने दीजिए, जो उसका इंटरेस्ट है। बच्चा खेलना चाहता है, लेट हिम प्ले। प्ले साइकोलॉजी में बच्चों के लिए एक चैप्टर है प्ले, क्योंकि प्ले और आज दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट nowadays the children are not able to go and play outside. This is really unfortunate for all of us.
तो ये जो है, बच्चे जब खेलते हैं, दूसरों से इंटरैक्ट करते हैं अपने एज ग्रुप के बच्चों से, तो वो बहुत चीज सीखते हैं। हारना सीखते हैं, स्ट्रगल करना सीखते हैं, जीतना भी सीखते हैं, और हार के कैसे रिएक्ट करना है वो भी सीखते हैं। जबकि आज के टाइम में अगर आप देखें तो बहुत सारे मेंटल डिप्रेशन है, सुसाइडल है छोटे छोटे बच्चों में। कितनी बार आप न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड 5-6 के बच्चे, माँ ने कुछ कह दिया, पिताजी ने कुछ कह दिया, स्कूल में कुछ हो गया, फ्रेंड से कुछ हो गया, दे बिकम सुसाइडल। तो ये क्यों? इसलिए कि हम लोगों ने बच्चों को हारना सिखाया ही नहीं है, कि हार भी जिंदगी में मिलेगी, सेटबैक भी जिंदगी में मिलेगा, ये हम लोगों ने नहीं सिखाया है उन्हें। तो ये जो इंटरैक्शन, नॉर्मल इंटरैक्शन है बच्चों का अमंग सिबलिंग्स, अमंग फ्रेंड्स, उसमें बच्चे ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें सीखते हैं। हारना है, डांट भी सुनना है, या लोग हमेशा तुमको बहुत अच्छे तुम्हारे प्रति नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीजें जो है, ये हम लोगों को आज के टाइम में, न्यूक्लियर फैमिलीज है, बच्चों के लिए एक अलग रूम है, अब तो और अलग है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है या मोबाइल है, बच्चे सिर्फ उसमें लेके आइसोलेटेड होते जा रहे हैं एंड दे क्रिएट एन इमेजिनरी वर्ल्ड। ये जो हम लोगों का वर्चुअल हर चीज चल रहा है, बच्चों का इंटरेस्ट भी उसी में हो गया है। तो इसकी हानि क्या है कि दे क्रिएट अ वर्चुअल वर्ल्ड। उन लोगों को वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में डिफरेंस समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली ऐसा नहीं हो सकता है। जो वर्चुअल वर्ल्ड है दैट इज क्वाइट डिफरेंट, एंड व्हेन यू गो टू द रियल वर्ल्ड यू हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीजें मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ कि बच्चों से आप बात कीजिए, कम्युनिकेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ये सोचते हैं कि बच्चों से बात, ये क्या बात किया जाए, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, जैसे इफ मदर इज वर्किंग, शी मस्ट से दैट इन द वर्क प्लेस आई फेस सच एंड सच प्रॉब्लम्स टुडे। और इवन फादर, दे कैन ऑल्सो टॉक टू देम कि ऑफिस में कोई जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा ही दिन बीते, हो सकता है कि मेरा दिन आज खराब था, I had a problem with my boss, so that the child must know कि outer world is something different। और स्मॉल, छोटी छोटी बच्चों को जिम्मेवारियां दीजिए, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी के टाइम में क्या है, द चिल्ड्रन हैव फॉरगॉट दैट देयर पेरेंट्स आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द फैमिली मेंबर्स आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन द सोसाइटी भी तो जब बच्चे बड़े होंगे उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें हम लोग भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। जब बच्चों का एग्जाम रहता है या क्लासेस है, तो वी जस्ट डोंट अलाउ देम टू गो एंड मिक्स विथ एनीवन। तुम रूम में रहो, पढ़ते रहो। तो ये इससे क्या होता है कि बच्चे दे डोंट अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ समवन हैज कम टू देयर हाउस, तो उनको एंटरटेन करना या उनकी खातिरदारी करना ये बच्चों की भी जिम्मेवारी है। they don't know because we have not taught them। तो ये जरूरी है कि हम लोग बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेवारियां दें डे टू डे लाइफ में। लाइक हम लोग ये कर सकते हैं कि आज का मेन्यू ये डिसाइड करेगा व्हाट वी आर गोइंग टू कुक, एंड जस्ट लेट हिम एंजॉय दिस, कि ठीक है आज ये और हम लोग सारी बात इसकी मानेंगे। या फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि आज घर की क्लीनिंग वो करेगा, या अपने कपड़े आज वो धोएगा। और उसमें नेवर बी जजमेंटल। इफ द चाइल्ड इज डूइंग समथिंग फॉर यू और फॉर एनीवन एल्स, नॉट ऑलवेज बी जजमेंटल। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही बच्चा कुछ बोलना शुरू किया या जैसे ही कुछ किया, हम लोग उसमें, अरे तुमको आता ही नहीं है, तुम ऐसे क्यों किया, तुम ऐसा झूठ क्यों बोला, तुम क्यों इस तरह से। नेवर, ऑलवेज डोंट बी जजमेंटल एवरी टाइम। तो बच्चों को इससे क्या होता है कि दे फॉरगेट टू टॉक टू यू। वो नॉर्मल आपसे अपने दिल की बात करना भूल जाएंगे अगर हम लोग हर समय उनके प्रति जजमेंटल रहेंगे कि वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, क्या कर रहा है। लेट देम डू समटाइम्स। और अगर आपको समझाना है तो अलग से बहुत प्यार से पास में बैठा के कि नहीं, तुम अगर ऐसे नहीं ऐसे करते तो ज्यादा अच्छा रहता है।
तो इस टाइप का जो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे गाड़ी साफ करना या गार्डन में पानी डाल देना, या अगर पेट है तो पेट को नहलाना, इस तरह की जो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये बच्चों को जरूर दीजिए, जिससे कि उन्हें समझ में आए कि जिम्मेवारी आगे भी उन्हें उठानी है, बड़ी जिम्मेवारी उठानी है, और ये इस तरह से सीखेंगे। और कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो एक्चुअली प्यार से बच्चे नहीं बिगड़ते हैं। अगर हमारा प्यार अनकंडीशनल है तो बच्चे कभी नहीं बिगड़ेंगे, लेकिन जहां हमारे प्यार में कुछ हमारा सेल्फिशनेस घुल जाता है, जब वो प्यार कंडीशनल हो जाता है, उससे बच्चे बिगड़ते हैं। तो ऑलवेज मेक फील अ चाइल्ड, योर पेरेंट्स, एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स, माँ या पापा, दे आर ऑलवेज विथ यू। कुछ भी, इफ दे आर डूइंग सम मिस्टेक ऑल्सो, दे आर देयर टू हेल्प यू। अभी एक केस आया था, आई एम जस्ट इन ब्रीफ आई एम टेलिंग यू, कि एक बच्चा आदित्यपुर का, वो ड्रग एडिक्ट हो गया था। आजकल ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसके पेरेंट्स आए थे मेरे पास, तो व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द चाइल्ड, तो उसने कहा कि कोई मेरी बात सुनता नहीं है मैम। अगर मैं पापा के पास जाता हूँ तो वो डांट देते हैं, काम है उनके पास। मम्मी के पास जाता हूँ तो या तो घर के काम में बिजी रहती है, या शी इज ऑलवेज बिजी ऑन मोबाइल। सो देयर इज नो वन हु कैन विथ हुम आई कैन टॉक। तो इसलिए हम बाहर में जाते थे फ्रेंड्स के, और कैसे उसे आदत हो गई। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये कम्युनिकेशन कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए बच्चों से। तो इसके लिए जरूरी है कि आप हमेशा जजमेंटल नहीं हो, उसकी क्रिटिसाइज हमेशा नहीं करते रहे, हमेशा उसे इंस्ट्रक्शंस ना देते रहे। हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ वन साइडेड इंस्ट्रक्शंस हम लोग बच्चों पे थोपते जाते हैं। ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसे करो, तुम गंदे हो गए। ऑलवेज इंस्ट्रक्शंस, लेट देम ग्रो बाय देयर ओन। उससे बात कीजिए इंस्ट्रक्शंस से अलावा, और कुछ समय ऐसा जरूर रखिए जब आप पूरी तरह 100% बच्चों की तरफ ध्यान दे करके बात सुन रहे हैं उनकी। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जब बच्चे कुछ बोलते रहते हैं तो मम्मी कुछ कर रही है, हाँ हाँ बोलो ना बोलो ना बोलो, बट दे आर नॉट अटेंटिव टुवर्ड्स देम। तो ये नहीं होना चाहिए। हमेशा बच्चों के प्रति जब अगर वो कुछ कह रहे हैं तो बी वेरी अटेंटिव विथ योर एक्शंस, विथ योर बॉडी लैंग्वेज। वैसा होना चाहिए कि ठीक है, हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं। उसकी आंख में आंख डाल करके बात कीजिए, उसके हाथ पे हाथ रख के बात कीजिए। यू ऑलवेज लिसन टू देम व्हाट दे वांट टू से। इससे बहुत सारा ये फायदा है कि आगे जाकर के बच्चे किसी गलत संगति में नहीं पड़ेंगे। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आएगा भी, they will come to you. Sometimes it happens, nowadays it is happening. The girls अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं गई, कुछ हुआ, वीडियो बना लिए, ब्लैकमेल कर रहे हैं, now she is not able to speak to her mother also. तो ये सिचुएशन नहीं होना चाहिए। ऑलवेज बी फ्री विथ योर चाइल्ड। उसका कम्युनिकेशन चैनल हमेशा ओपन होना चाहिए, जिससे कि बहुत सारे प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। क्योंकि और ये हैबिट शुरू से डालना होगा। ऐसा नहीं होगा कि अचानक वो बच्चा टीनेजर हुआ तब आपसे बहुत फ्री हो जाएगा। दिस हैबिट शुड बी इनकलकेटेड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। नर्सरी से ही आप बच्चों के साथ जैसे क्या है, अच्छा बताओ क्या हुआ, उसमें सुनिए, उसके साथ एंजॉय कीजिए। यू जस्ट टेक इंटरेस्ट इन व्हाट दे आर सेइंग। तो इससे क्या होगा कि बच्चे फ्री होंगे, वो कम्युनिकेशन का चैनल कभी भी खत्म नहीं। उसके अलावा बूस्टिंग योर चाइल्ड सेल्फ एस्टीम। अगर बच्चा, जैसे हम लोग अक्सर करते हैं ना, कोई बाहर से आया तो चलो राइम सुना दो, चलो गाना सुना दो, तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन उसमें आप बच्चे को सामने की तारीफ कीजिए। या अगर बच्चा बैठ कर कुछ अच्छा कर रहा है,
पैट कर दीजिए, आप ऐसे छोटी बातें, प्यार से देखना, प्यार का स्पर्श, ये सारी चीजें बच्चों को बहुत बूस्ट अप करती है, उसके सेल्फ एस्टीम को, ये उसको बहुत कॉन्फिडेंट बनाएगी। आपका थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा रात में सोते समय छोटी छोटी कहानियां सुना दीजिए, तो ये सारी चीजें जो पुराने जमाने में थी, ये रियली काम करती हैं। और बच्चों को हमेशा इंस्ट्रक्शन देने के अलावा आप खुद उस गुड हैबिट्स को अपने में डालिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्मोक ना करे, आप भी मत कीजिए कभी। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को मोबाइल की आदत ना लगे, तो आप अपने और तो चाहते हैं आपको तो करना होगा। एंड मेक टाइम फॉर योर किड्स, जैसा हमने पहले भी बोला, एंड बी अ गुड रोल मॉडल। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बी फ्लेक्सिबल एंड विलिंग to adjust your parenting style. See, as I told you earlier, every child is unique. हर बच्चा अपने आप में अलग है, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही फॉर्मूला सब पे लागू हो। You have to be flexible. अगर बच्चे का नीड कुछ और है, तो आपको उसके साथ, उसके अनुसार चलना होगा। हो सकता है कोई बच्चा बहुत इंट्रोवर्ट हो, वो नहीं बहुत ज्यादा बात करना पसंद हो, बहुत सोशलाइजिंग उसको अच्छा नहीं लगता हो, तो आपको उसको उसकी आदत को समझते हुए यू डोंट हैव टू प्रेशराइज एवरी टाइम कि देखो तो वो कितना अच्छे से मिलता है सबसे, तुम नहीं मिलते हो, तुम ऐसे हो। तो दिस इज नॉट फेयर। एक्चुअली द यूनिकनेस शुड बी प्रोटेक्टेड एंड यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। हो सकता है एक भाई के साथ आपने जैसे उसे पाला, दूसरी बहन के साथ या दूसरे भाई के साथ आप वही सेम तरीके से नहीं पाल सकते। तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल एंड शो योर लव अनकंडीशनल। जिस भी परिस्थिति में रहो, जैसे भी रहो, आई एम देयर फॉर यू, ये कॉन्फिडेंस बच्चों को जरूर देना चाहिए। ये बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, ये कॉन्फिडेंस देना कि योर पेरेंट्स आर देयर, एटलीस्ट मदर और फादर इज देयर टू लिसन टू यू। और अगर बच्चा कभी आपको उदास दिखे या डिप्रेस दिखे, तो आप उसको इग्नोर मत कीजिए। You just find out what is the reason. If his behavior is changing all of a sudden, if he is sleeping a lot, or if he has stopped eating या ज्यादा सो रहा है, इस तरह के, या इंटरैक्शन उसके खत्म हो गए हैं, वो दूसरों से मिलना नहीं चाहता है, if his behavior is changing, then you be alert and you find out the reason. Why is he behaving like this? Is there any problem in the school, with the friends, with the relatives? Because there are so many things. You can't just guess, या फिर इग्नोर नहीं कर देना चाहिए कि अरे कुछ नहीं है, ऐसे ही हो गया होगा कुछ। Don't do this. You just be watchful why the child is behaving differently. This is very important, and many things can be avoided by just watching. कि बच्चा अगर बाहर जा रहा है तो क्या कर रहा है, बिकॉज अभी रिसेंटली आई डोंट नो व्हाई बहुत सारे ड्रग अब्यूजेस के केसेस मेरे पास आए, एंड नॉट बहुत बड़े बच्चे नहीं, वो स्टैंडर्ड 5-6 के बच्चे, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग इट। मीन्स if the parents are watchful, then they will understand in the beginning also कि अगर बहुत टाइम बीत जाने के बाद then it becomes very difficult, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो there are so many things in the society your child is doing, and if the child is communicating something, कुछ प्रॉब्लम वो बताना चाह रहा है, तो always listen to him, स्कूल के बारे में या फ्रेंड्स के बारे में, तो उसको जरूर सुनिए आप ठीक से। उसके हम बच्चों के स्ट्रॉन्ग एरिया को, स्ट्रेंथ है बच्चे का, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस? बिकॉज
it may happen that one brother is very good in maths, another is not so good in maths, but he is good in literature. So it happens. So the parents, how we understand what is the strength of my child, and it may vary from one child to other. I always say this कि एक ही पेरेंट्स के अगर दो बच्चे हैं तो दोनों का डिफरेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, एरिया ऑफ स्ट्रेंथ हो सकता है. तो हमें ये जानना चाहिए कि जैसे सबसे पहले हम लोगों को क्या जनरल स्ट्रेंथ है. जनरल स्ट्रेंथ का मतलब हाउ ही इज सोशलाइजिंग विथ अदर, उसका सोशल स्ट्रेंथ क्या है, हाउ इंडिपेंडेंटली ही कैन थिंक, कितना अपने आप से वो डिसीजन ले सकता है, क्या वो इंडिपेंडेंटली वो सोच सकता है या नहीं सोच सकता है. अगर वहां पे लैकिंग है तो यू हैव टू वर्क फॉर दैट. अगर हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बच्चों को अगर देते हैं, अच्छा ये डिसीजन तुम बताओ क्या करना चाहिए, छोटा सा, मान लीजिए ड्रेस ही खरीद, अच्छा ये खरीदे या ये करे. अगर वो बच्चा इंडिपेंडेंटली स्ट्रांगली कॉन्फिडेंटली बोलता है कि नहीं आई वांट दिस, दिस इज अ गुड वन. बट इफ समवन इज जस्ट कंफ्यूज्ड क्या करें क्या नहीं, तो इसमें आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चे के पर्सनालिटी में ये डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम, वर्क फॉर दैट. वी हैव टू गिव मोर कॉन्फिडेंस टू द चाइल्ड. हमने कॉन्फिडेंस का बहुत सारा कम्युनिकेशन स्किल और टच थेरेपी एंड मेनी थिंग्स आई टोल्ड यू. तो इस तरह की चीजों से हम बच्चों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं. दूसरा की लैंग्वेज स्ट्रेंथ, कि बच्चा अपने आप को कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर ले रहा है. अगर वो अपनी बातें समझा दे रहा है, कुछ बच्चे, ये डिपेंड करता है कि हाउ द चाइल्ड इज इंटरैक्टिंग विद अदर्स. तो ये लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इफ द चाइल्ड इज लैकिंग टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, अपने आप को वो बता नहीं पा रहा है ठीक से, या इफ ही इज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, then you must work on that. So there are so many things we have to explore, कि what is his strong points and what are his weaknesses. Weaknesses भी बच्चों के जो हैं उन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. जैसे कि कई problem which the parents are unable to understand, even the teachers, because they are not trained for that. तो वो समझ नहीं पाती हैं. जैसे कि डिसलेक्सिया है, एक बहुत कॉमन देने की जरूरत है. what happens कि when the child is very small, whatever he wants we are providing them. मुझे ये चाहिए, मार्केट में भी जा करके ये टॉय चाहिए या ये चाहिए, तो एवरी टाइम वी आर प्रोवाइडिंग व्हाटएवर ही डिमांड्स, हम लोग उसको पूरी करते हैं. लेकिन ये हम लोगों को बचपन से ट्रेनिंग देनी होगी. और जब ये जैसे जैसे बड़े होते हैं, उसमें जब वो कमी होती है तो इट एंगर में ये बदल जाता है, वो जिद करना सीख जाते हैं, तरह तरह के टैंट्रम्स शुरू कर देते हैं. तो ये हमें शुरू से ट्रेनिंग देनी है. एंड वी हैव टू मेक अ लाइन, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन कि इससे ज्यादा हम आपकी बात नहीं मानेंगे. बी वेरी पोलाइट बट बी स्ट्रिक्ट ऑल्सो. और बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अच्छा बहुत रोएंगे, बहुत गुस्सा दिखाएंगे तो पेरेंट्स पूरा कर ही देंगे. तो ये आपको क्लियर उनको मैसेज देना होगा कि नहीं, इससे इस हद से ज्यादा आपकी बात कितना भी आप टैंट्रम शो करें वो नहीं दिखाई जाएगी. और जब बच्चा बहुत एंगर शो करे तो आप कोशिश कीजिए उसको डाइवर्ट करने का. बार बार उसके एंगर को बढ़ाने से आप भी चिल्ला रहे हैं, वो भी चिल्ला रहा है, उससे यू डाइवर्ट देम, उनका कहीं और ध्यान लगाइए. अच्छा चलो आज हम लोग ये देखते हैं कैसा ड्राइंग बना है, या टीवी में क्या आ रहा है, चलो वो देखते हैं. यू ट्राई टू डाइवर्ट हिज एंगर. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, actually, we are running very short time, and I hope Yes. So, Ashu, ma'am, should we take any more question? Yes. Or So I think, yeah, ma'am. I think we will not take any further questions. And in any case, Dr. Nidhi has been very explicit and she has explained everything so well. We are really very grateful. I would request
Teacher Molly to propose the vote of thanks. Thank you, ma'am. Good evening to all. On behalf of the management and the entire staff members of Motilal Nehru Public School, I, Teacher Molly Dev, would like to take this opportunity to extend a very hearty thanks to our today's resource person, Dr. Nidhi Srivastava, for gracing the occasion and sharing with us the guidelines and opinions regarding effective parenting. We'd like to thank to our senior leadership team for creating this wonderful platform where we have been able to form forums. And of course, we are able to share our thoughts as well as problems. A special thanks to our principal ma'am, who is really a guiding and constant motivating force behind our endeavors. A big thank you to our parents who joined us today on this evening. I'm sure that all the parents have taken note of suggestions, and we are hoping that the action to be initiated at their level. Thank you to all of you once again. Stay healthy and stay safe. Thank you, ma'am. Thanks to all. Thanks to all. Thanks, Ashu ma'am, for calling me. My pleasure. We enjoyed your company. Thank you. Thank you very much. Thanks to all the parents. I hope you understood what I wanted to convey to you. और जब भी कोई problem हो, you can have a word with your principal, and you can contact me also through her. Okay, thanks. Thank you so much, Dr. Nidhi. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, dear parents. Yeah, we will close the meeting now. Okay. Yes, ma'am. Thanks a lot. Bye. Thank you, ma'am. Thank you. Bye.